अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आई नो दैट आई एम कमिंग बैक टू द स्क्रीन आफ्टर वेरी long break. Actually, my co-host Atif has been a very busy man, so I can very conveniently put all the blame on him. Atif actually एक project में बहुत busy हो गया था. He's just finished shooting the first ever Pashto feature film, which hopefully inshallah will be on air pretty soon. और आप लोग बड़ा enjoy करेंगे वो, क्योंकि उन्होंने बड़ी creativity उसमें उन लोगों ने show की हुई है. तो I'm back with my H&A, and I welcome you on podcast, and I welcome you all on board for this program. And as usual, viewers, आपको पता है कि there is an objective behind recording all these podcasts and these programs. इसमें हम कोशिश करते हैं कि we bring forward the heroes of Pakistan, people who have contributed to the cause for Pakistan or of Pakistan in any particular respective field they have specialized in. और इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ फील्ड्स के लोगों को हम लेके आए हैं, एंड यू विल बेयर विटनेस टू द फैक्ट कि इसमें डिफरेंट फील्ड्स के लोग आए, हर एनवायरमेंटलिस्ट आए, जीनोम इंजीनियरिंग के लोग आए, डिप्लोमेट्स आए, वॉयजर्स आए, ट्रैकर्स आए, मोटरसाइकिलिस्ट आए. तो इसमें हमारा बहुत बड़ा एक फील्ड है, एंड कोई कन्फाइंड हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं बिलीव करते. तो इसी ज़िमन में टुडे वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव विद अस अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, जिनका मैं भी आपसे तारुफ कराता हूँ. He has had a long experience and a very vast experience in the field of diplomacy, पाकिस्तान की सिफारतकारी. और alhamdulillah, by the grace of Allah, Pakistani diplomats have shown how brilliant they are, and today we are lucky to have an ace diplomat of the Pakistan Foreign Service, Ambassador Masood Khalid, and he has been ambassador in 3 stations: Malaysia, China and Korea. और उसके अलावा वो खुद अपना तारुफ कराएंगे, बताएंगे. और आपको पता है कि हम तो बड़े प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड वी वांट टू नो द पर्सन बिहाइंड, कि व्हाट ब्रॉट हिम इनटू डिप्लोमेसी. एम्बेसडर बने तो क्यों बने, फॉरेन सर्विस ज्वाइन की तो क्यों ज्वाइन की. तो इस किस्म के सवालात से हम उनसे शुरुआत करेंगे अपने आज के पॉडकास्ट की. एम्बेसडर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन फॉर दिस प्रोग्राम. और जैसे मैंने थोड़ा सा अपने इंट्रो में बताया कि हम हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान को सामने लेके आते हैं, और मेरे नज़र में आप एक हीरो हैं, इसलिए कि आपने बहुत पाकिस्तान की खिदमत की है. आपने पाकिस्तान की खिदमत ओवर स्पैन ऑफ 40 ईयर्स, 4 डेकेड्स आपने खिदमत की है इन वेरियस कैपेसिटीज़: पॉलिसी मेकिंग, practical diplomacy, implementation and execution of government's policy making. और हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं आपके इस वेरी एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस से फ़ायदा लें. और हम जानना चाहते हैं कि हु इज़ एम्बेसडर मसूद खालिद, कहाँ से शुरुआत हुई, व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ योर करियर, और व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन द पाकिस्तान फॉरेन सर्विस. Was it by design? Was it accidental? और to start off, हम वहाँ से start करेंगे, या फिर इंशाल्लाह as we go along in the podcast we'd ask you questions accordingly. So once again sir, thank you very much, और it's over to you. First of all, thank you very much, Habib Sahab, for giving me this opportunity and for your very kind remarks for me. It's really a privilege to be here, and I know how versatile you are, because I know a bit about your hobbies and your interest, and really shows के आपकी personality माशाल्लाह बड़ी versatile है, from music to coffee making to biking and trekking and mending the dog, etc., etc. But I like such persons. Not that we should indulge in mutual eulogy or mutual appreciation, लेकिन ये फैक्ट है. बहरहाल, थैंक यू वेरी मच. आपने बड़ा सवाल किया, तो मैं इसको कोशिश करूँगा मुख्तसर, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि
बोर नहीं करना चाहते ऑडियंस को, व्यूअर्स को। अच्छा देखिए, आई वाज बोर्न इन रावलपिंडी. My father was all along his life he worked in the private sector. He अच्छा. never joined actually any government service, even though at times he was offered. So somehow hota hai. So then my initial education was in this missionary schools in Pindi, St. Patrick's, and for a very short while in St. Teresa, but that was at a tertiary level. Mhm. And after doing my matriculation, high school, in the St. Patrick's, I went to Gordon College in 1969. तो मैं गॉर्डन कॉलेज गया और पहला इरादा मेरा था कि डॉक्टर बनेगा. देखिए, जैसा कि उस हाँ, जमाने उस में हर जमाने का में शौक देखिए होता एक ही था, और वो यही था कि आप तीन चीजें थी, या तो आप डॉक्टर बन जाइए, या इंजीनियर बन जाइए, या फौज ज्वाइन कर लें. सही. तो फ्रैंकली मैंने फौज की कोशिश की. मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूं, बट somehow I was not मेरी ये ड्रोन जो थे ना, अच्छा. इसकी एयर ड्रम्स की इसकी प्रॉब्लम आई मेडिकल में. ओके. although I was फिजिकली skinny and thin like this. तो बहरहाल वो नहीं हुआ. तो मैं प्री मेडिकल में चला गया. वहाँ मैंने FSC की. लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो जब आई लाइक्ड एक्चुअली botany more than the zoology. And physics I hated. So anyway, got along. And one day in the lab, in Gordon College lab, वो जब डायसेक्शन का टाइम आया तो उन्होंने हमारे सामने एक फ्रॉग को पिन कर दिया और एक रैबिट को कर दिया. नथिंग दैट वन कुड डू, वो तो हमें करना था, पार्ट ऑफ आवर कोर्स. खैर वो जब मैंने किया तो मैंने कहा भाई दिस इज नॉट माय फील्ड, आई कांट डू इट. I mean, the look of it was repulsive. Yeah. No, actually frog from inside is very nice. It's like it's a chicken, white meat, But the very fact that you are cutting it, and I mean I could not swallow that sight. मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं. अच्छा, तो वो खैर वो FSC हमने कर ली प्री मेडिकल. उसके बाद देन आई स्विच्ड ओवर. अच्छा. जैसे आपने मुझे बताया कि आप पहले इकोनॉमिक्स करना चाह रहे थे, उसके बाद आप IR में चले गए, तो मैं फिर आर्ट्स में आ गया. BA I did from Gordon College, Okay. in 1973. All right. And I did perform quite well there. क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट था ना, Interest था. पॉलिटिकल साइंस, दिस एंड दैट. वो बड़ा टाइम भी बड़ा जबरदस्त था. वो 71 की क्राइसिस से हम ओवरकम कर रहे थे उसको, ईस्ट पाकिस्तान की. और उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की. इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक टाइम इन पाकिस्तान's पॉलिटिकल हिस्ट्री. तो वो फिर ग्रेजुएशन के बाद जब 73 में कर ली, तो देन आई डिसाइडेड टू डू माय मास्टर्स. और उसी वक्त मेरे जहन में ये था, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा एक था, बड़ा अच्छा मुझे सारी वो चीज़ लगती थी. और मैं उस ज़माने में, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, बट वी यूज्ड टू हैव दीज वेरी गुड लाइब्रेरीज इन रावलपिंडी. Exactly. 3 libraries. One was the British Council, the American Center, and the Pakistan Center. बिल्कुल सही. So I was a regular visitor. और कुछ अपने दोस्तों के साथ हम वहाँ जाते थे. कभी हम कोई किताब ले रहे हैं, कोई वहाँ मैगजीन्स बड़े आते थे इंटरनेशनल अफेयर्स पे, खुसूसन अमेरिकन सेंटर में, ब्रिटिश काउंसिल में भी, तो वो हम पढ़ते थे. तो शौक डेवलप हो रहा था मेरा. तो मैंने कहा कि अब मैं जाऊंगा and I'll join the university. So I applied for master's admission. वो मुझे मिल गया. So I joined the International Relations Department in 1974. Okay. And 1976 I qualified from there, my master's degree. वो भी बड़ा अच्छा टाइम था. बड़े जो we were the first students in a way, क्योंकि वो IR डिपार्टमेंट में उस वक्त आपने नाम सुना होगा डॉक्टर रिफत हुसैन का, who passed away. He was my contemporary. चौधरी निसार साहब भी थे उस वक्त. इस तरह काफ़ी लोग. तो बड़ा अच्छा हमारा टाइम हो गया. तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था. अब माय फादर एक्चुअली also suggested to me that you should
go for the CSS, Central Superior Service Examination, Hmm. and opt for foreign service. He did not pressurize me, but he suggested. And probably he discerned my interest in the politics, international politics, this and that. So he advised me. और मुझे खुद भी इंटरेस्ट था, तो मैंने जब कर लिया वहाँ से 76 में, उसके बाद मैंने कहा कि अब इम्तिहान की तैयारी करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो होते हैं ना टर्न्स ऑफ फेट, Hmm. ये बड़े रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। जब मास्टर्स हमारा 1 साल हो गया, one of my very close friend, buddy actually, he was also with me in IR department from the childhood days, and we were doing masters. तो ऐसे ही वो होता है ना, जवानी में कई दफ़ा जोश आता है, तो हमने कहा यार वो कोई आई थिंक इट वाज हबीब बैंक, यस, Hmm. तो उन्होंने एडवर्टाइज किया कि आप ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करें। Okay. अच्छा, हमने दोनों ने अप्लाई कर दिया, हमारा इम्तिहान हम दोनों सेलेक्ट हो गए। अब वो बड़ा डिसाइसिव मोमेंट था, क्योंकि मैंने आधा साल जो था वो 1 साल लगा दिया था IR का, और 1 साल रहता था। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई क्या इरादा है, मैंने कहा नहीं पार्टनर, मैं तो पूरी मास्टर्स करूँगा। Hmm. अच्छा, ही ऑप्टेड फॉर दैट जॉब, Join the bank. वो बाहर चले गए फिर, तो मैंने इस तरह कंटिन्यू किया। और उसके बाद 1977 में फिर मैंने जब मास्टर्स कंप्लीट हो गई, तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, अच्छा। CSS एग्जाम। और फिर मैं अपेयर हुआ 1977 में, और फिर आपको पता है वो 1 साल की तकरीबन ट्रेनिंग होती है, 78 at the Civil Service Academy, and then the Army Special attachment. I did 3 months attachment Hmm. all by myself, and a memorable experience, I can't tell you, in Azad Kashmir, Hmm. in Nakyal. वो करने के बाद और वो फिर ऑप्ट किया, एग्जाम दिया, उसमें my first choice was foreign service, my first choice, अच्छा, yes, first choice थी आपकी। on top, and that was no pressure, it's my own inclination, my own bent of mind, I was interested. अच्छा। तो उसके बाद लेकिन वो आपको पूछते हैं ना, चॉइसेस जी, जी, पूछते हैं, तो आपकी, उसके बाद हाँ, मैंने ग्रुप्स के लिए कौन सा? मैंने फॉरेन सर्विस वाज माय फर्स्ट, देन DMG, देन प्रॉब्ली कस्टम्स, एंड देन पुलिस, इस तरह था कुछ। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, मेरी भी फर्स्ट फॉरेन सर्विस, सेकंड DMG और थर्ड कस्टम्स। अच्छा, अब कस्टम्स और पुलिस में शायद मैं मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं पुलिस को मेरे ख्याल में मैंने पुलिस मेरा कस्टम्स भी, के बाद रखा था। हाँ। अच्छा, अब उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज आई, तो जब आप हमारे जमाने में वो क्यूमुलेटिव मार्किंग होती थी, जी, जो जी। ट्रेनिंग वहाँ एकेडमी में होती हाँ। थी, उसकी बेसिस पे हमें एलोकेशन होती थी हाँ, सर्विस की। ये अच्छा। सो जब वो हुई और जब we were in final stage, तो my friends, their colleagues, because I was quite good in terms of my position, so I could get the DMG, I could get the customs, I was in that merit bracket. तो वो मेरे पास आए कि मसूद आप हमें सही बताइए कि आपने ऑप्ट वाकई में फॉरेन सर्विस के लिए किया है, क्योंकि अगर आपने उसके लिए किया है, हम तो नहीं कर रहे, तो फिर हमारी कस्टम्स आ जाएगी, DMG आ जाएगी, you know, most of our people are interested. तो इस तरह ये हुआ, और I joined the foreign service in 1971. So that was your journey into the Pakistan Foreign Service. That's right. So Right from the very beginning. I अच्छा, think another you- interesting thing, yes, ये जो मैं आपको, Hmm. एक तो मैंने बैंक का आपको किस्सा सुनाया, you also studied in IR department, Qaid-e-Azam University, जी। right? At our time, the vice chancellor was Dr. Kaneer Yusuf, legendary lady, Yes. a very accomplished scholar. Absolutely right, sir. अच्छा, उनका मैंने एक पेपर ले लिया पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का। She didn't know me from Adams. She did not know me who I am, एक स्टूडेंट क्लास में। तो वो जब सेमेस्टर कंक्लूड हो रहा था, आई थिंक इट वाज थर्ड सेमेस्टर, तो जब पेपर हमने सबमिट किया असाइनमेंट का, रिसर्च पेपर, तो शी लाइक्ड इट वेरी मच। उन्होंने शी कॉल मी स्पेशली टू हर ऑफिस, और वो बड़े अच्छे उससे खिताब करते, उन्होंने शुरू में कहा कि आप IR डिपार्टमेंट, मैं तो आपको नहीं जानती। मैंने कहा मैडम, मैंने आपका पेपर लिया था पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का, तो वो मतलब मैंने ऑप्ट किया था। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, यू हैव ए गुड माइंड फॉर रिसर्च एंड यू नो एकेडमिक्स एंड दिस एंड दैट। ये बात थोड़ी करके, आपका क्या इरादा है, मास्टर्स कंप्लीट करेंगे?
मैंने कहा मैडम मैंने CSS का इम्तिहान देना। CSS का इम्तिहान देना, व्हाई डोंट यू जॉइन द यूनिवर्सिटी, हम आपको ग्रेड 17 में वो रिसर्च एसोसिएट होता है, उसमें हम आपको ले लेंगे, और उसके बाद देखिए फिर प्रोग्रेशन होती है, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, बड़ी अच्छी फील्ड है एकेडमिक्स। मैंने कहा मैडम मुझे आप टाइम दे दें थोड़ा सा, मैं सोच लूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ये 4-5 मिनट की 6 मिनट की गुफ्तगू हुई, मैं बाहर आ गया, लेकिन मेरा तो दिमाग वहीं अड़ा हुआ था कि मैंने इम्तिहान देना है। अब आप ये देखिए कि उस वक्त अगर एकेडमिया ज्वाइन कर ली होती तो बिल्कुल रास्ता कुछ और होता, लेकिन जहन में ये था कि नहीं ज्वाइन करना है। तो इस तरह 79 में हमने फॉरेन ऑफिस ज्वाइन कर फॉरेन सर्विस। आई थिंक सर कि यू बीन अ वेरी लकी पर्सन कि आपको वही करियर मिला जो जिसका कि आप ख्वाह थे और आप चाहते थे। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में बड़े कम लोग होते हैं जिनको अपने वही करियर्स मिलते हैं। अच्छा सर, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आ गया फॉरेन सर्विस में, तो फिर मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपने, अब मैं ऑफ कोर्स हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम पूरी 40 साल की आपकी हिस्ट्री गो थ्रू करें कि कहाँ कहाँ आप रहे और क्या क्या कुछ किया, बट once you were in the foreign service, how do you find yourself in the diplomatic environments, being abroad as well as at the head office? Was it according to your expectations? Did you face any challenges? And what were the opportunities that came along your way? तो आई एम सॉरी सर, ये थोड़ा सा चूंकि हमारे व्यूअर्स को इंटरेस्ट होता है टू नो द पर्सनल एंगल और to know what really kind of opportunities and challenges you think faced your career making. No, I think it's a very relevant question, but I must say with some emphasis that once you are sort of committed and inspired by a certain thing, then you feel involved. So right from the very beginning, I did not even for a minute think that I was in the wrong service. You understand? So I mean, although we joined as section officer, and as soon as joined the ministry, I was assigned the desk of Canada and Latin America. Soon thereafter, this war started, Falklands War, Malvinas, Argentina. Nobody knew what Falklands is. Or where is it? Where is it? अच्छा, तो वो फिर मुझे टास्क दी गई, एंड देन बड़ा अच्छा था वो, हमने उसके ऊपर पेपर वर्क किया, पोजीशन पेपर वगैरह बनाए पाकिस्तान को। उस वक्त तो बड़ा अच्छा, कहने का मेरा मतलब ये है कि वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू आर थ्रोन इनटू दिस crisis oriented situation and environment, which is actually a challenge as well as an opportunity. Absolutely. That, and then I mean, as a young officer, when you don't know much about the technicalities and the intricacies of the service as such, but if you try to I mean do your best in the sense that जो आपकी expectations आपसे होती हैं, अगर वो थोड़ी बहुत मीट हो जाएं, तो जो थोड़े बहुत lapses होते हैं ना, वो भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है। So that is how I started. Then soon thereafter, I went for my language training to Japan. I did my Japanese, came back to ministry. You can speak Japanese जी हाँ, as of today also. हाँ, बहुत फ्लुएंट तो नहीं है, लेकिन मैं फंक्शनल थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं वापस आया यहाँ पे, मुख्तलिफ डेस्क वगैरह, और प्रोटोकॉल में काफ़ी रहा। अच्छा, वो 79 में आपको याद होगा कि अफगान जहाज शुरू हो गया जी, सॉरी, हाँ, वो मतलब 79 में रशियंस आ गए थे ना, सोवियट्स आ गए थे, ऑक्यूपेशन जो हुई थी। और मैं आई हैपन टू बी इन द प्रोटोकॉल एट दैट पॉइंट इन टाइम, प्रोटोकॉल ऑफ द विजिट साइट। अच्छा, सो वहां पे ये हुआ कि वो एक बी लाइन लग गई डिग्नेटरीज की, वर्ल्ड डिग्नेटरीज की, पाकिस्तान आने के, ज़ियाउल हक साहब का जमाना। और वो जो आप पूछ लें मुझसे कि कौन सा वर्ल्ड डिग्नेटरी है जिसके साथ हमने I was very junior officer, but 1.5 year लर्निंग बहुत होती है। हाँ, वो आते थे, वो प्रेसिडेंट से मिलते थे, मुलाकातें होती थी। आई यूज्ड टू कंडक्ट देम। जॉर्ज बुश केम सीनियर एज वाइस प्रेसिडेंट, Saudis.
and a host of dignitaries which somehow I happened to be there. So it was a very memorable experience. बड़ा tough होता था. कोई सर एनेक्डोटल बात तो बताएं इधर, जस्ट लाइक थोड़ी सी ऑन अ लाइटर नोट, यू फील के एज अ यंग ऑफिसर कोई ऐसी चीज आपने फेस की, कोई ऐसी सिचुएशन फेस की जो आपके लिए जरा मुश्किल थी हैंडल करना, या इट गिव अ बूस्ट टू योर. दूसरा सर, इसी जिमन में मैं, चूंकि आपने उस इनिशियल डेज की अपनी बात की, डू यू फील कि सर आपकी मेंटोरशिप फॉरेन ऑफिस में, और आई एम श्योर कि पुराने वक्तों के हमारे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे फॉरेन ऑफिस के, और आज भी हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह, बड़े बड़े नाम थे, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन शेयरिंग विद आवर ऑडियंस एनी पर्टिकुलर नेम्स यू विश टू टॉक अबाउट? जी. तो देखिए, दो अब एंगल्स हैं मेरे सवाल जी. के, एक ये वाला है और दूसरा द एनेक्डोटल. देखिए, बात ये कि ये जो मैं फॉरेन सर्विस की जो एक यानी कि इसकी जो आप क्या कहेंगे कि अहम तो अपनी जगह पर है, लेकिन मेरी जाती राय में ये बहुत अच्छी सर्विस है क्योंकि इसमें एक्सपोजर बहुत होता है आपका, और आपका इंटरेक्शन जो है यानी कि एट द हाईएस्ट लेवल, एट द वर्किंग लेवल ऐसे लोगों से होता है, इंटेलेक्चुअल से, टॉप डिप्लोमेट से, स्कॉलर से, वो आपको बड़ी यानी कि जो जिसको कहते हैं ना आप, एनरिचमेंट होती है आपकी नॉलेज की, और आपकी अपनी ग्रोथ होती है, आपकी मेंटल ग्रोथ, और आप सीखना. तो इट्स अ लर्निंग कर्व ऑल अलोंग इन योर लाइफ, यू आर ऑन अ लर्निंग कर्व फ्रैंकली. बिल्कुल सर. तो मैं फिर उसके बाद, तो मैं थोड़ा मुख्तसर बता दूं, उसके बाद फिर मैं जब ये यहाँ से कर आके फिर मैं देन आई वेंट टू लंदन पोस्टिंग जी, पोस्टिंग के लिए. फ्रॉम लंदन देन आई वेंट टू उज़्बेकिस्तान, then came back from Uzbekistan. I went to New York, and from New York I went to South Korea. Sorry, my first posting in South Korea as a junior officer, but again, then I went as ambassador to South Korea. Came back, served as a district secretary for Asia Pacific region. अच्छा, मुझे रीजन भी वही दिया जो मुझे मतलब ये कि इसमें एक मेरा इंटरेस्ट, स्पेशलाइजेशन हो गई थी आपकी. उसके बाद फिर मैं मलेशिया चला गया, मलेशिया के बाद चाइना. तो ये आइटनरी रही मेरी. अब आपने कहा कि इनसे सीखा आपने, बहुत लोगों से सीखा. मैं तो समझता हूँ कि we in the foreign service have some brilliant minds, believe me, and people who are writers other than doing their professional duties. They're painters, they're artists, they're intellectuals, they're music lovers. Somebody has specialized in classical music, Western classical music. It's not easy. Philosophy. तो जो मेरे जिनके साथ मैंने काम किया उसमें चंद सीनियर पुलिस का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा. उसमें एम्बेसडर इनाम उल हक साहब, जो कि हमारे बाद में जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे, फिर फॉरेन मिनिस्टर रहे. अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे. उसके बाद अहमद कमाल साहब मरहूम, ही वाज माय फर्स्ट एम्बेसडर. देन शमशाद साहब, ex foreign secretary, my first ambassador in Korea. Then अपने रियाज मोहम्मद खान साहब, रियाज खुकर साहब, they were all outstanding. और somehow मुझे ये काम करने का मौका मिला. और उसके बाद मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, खालिद महमूद साहब हैं जो अभी चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी, उनके साथ मैं 2 दफ़ा काम किया. ये बड़े सीनियर लोग, बड़े मजे हुए लोग, और हमें कभी कभी बताते थे कि आप गलत सोच रहे हो या गलत काम कर रहे हो, इसको ऐसे करो. तो बड़ी रहनुमाई होती थी. और फिर ऑफ कोर्स इन न्यूयॉर्क आई वाज विद एम्बेसडर मुनीर अकरम. मुनीर अकरम साहब जो हैं वो भी आपको पता है कि he is his passion as well as his interest and his accomplishment is multilateral diplomacy. Absolutely. So बड़ा अच्छा रहा ये. तो आगे चलते हैं सर. अब नेक्स्ट इन लाइन व्हाट आई फील इज के डिप्लोमेसी बड़ा एक मुश्किल सब्जेक्ट है, कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, और चैलेंजेस इतने रहते हैं, इतनी बैलेंसिंग एक्ट्स करने पड़ते हैं मुल्कों को, लोगों को, डिप्लोमेट्स, क्योंकि आई मीन लाइक आखिरकार ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूमन फेस रनिंग द होल शो. डिप्लोमेसी कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि वो हवा में कोई मौलिक चीज़ है जो चल रही है. देयर आर पीपल बिहाइंड, और उसमें मैं आई वुड लाइक यू टू kindly share with our audience ke do you feel ke by virtue of your being Masood Khalid
in any particular capacity. It could have been a second secretary, it could have been a first secretary, it could have been a counselor, it could have been an ambassador. Any particular moment or moments you felt that you made an impact on furthering the cause of Pakistan's diplomacy? I'm trying to clarify the concept. Number one is that, of course, people working behind the scene, they are unsung soldiers that way. You know, they do their work silently. And this is mostly, it is the silent diplomacy as we are witnessing now in the case of US and Iran conflict, the role which Pakistan is playing. No one is revealing as to what the content of this silent diplomacy is. Once it culminates in some kind of agreement, of course, it will come public. So people in the foreign ministry are doing very important work related to national security, our main concerns vis-a-vis Pakistan's sovereignty, independence, and each one of us somehow, depending on what assignment he or she has, each one of us contributes in a way to furthering the overall, purpose and objectives of national policy. एक तो ये दूसरी बात ये कि लोग ये समझते हैं कि डिप्लोमेसी जो है ना, वो कोई एक ऐसा है कि मैजिक बैंड है. इट्स एन इवेंट. डिप्लोमेसी इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ये आप प्रोसेस में रहते हैं, लोगों को समझने अभी भी देखिए ईरान और exactly. प्रोसेस हो रहा है. प्रोसेस है. मतलब मैं हाइपोथेटिकली देखिए कि अभी हम बात कर रहे हैं कि देयर विल बी अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है. सो व्हाट डज दैट मीन? That means that the framework agreement is not going to settle all the problems. It's going to define broad parameters for further engagement between United States, Iran, or any other relevant party, right? And then the process will start of a structured mechanism whereby they should be sitting together and discussing about key issues like nuclear issues, lifting of sanctions, this and that. Because without the middle ground, then the other option is a conflict or a war or another bigger crisis. So diplomats try to diffuse tensions. It is actually the first line of defense. अगर आप देखें तो लड़ाई तो उस वक्त होती है ना जब डिप्लोमेसी फेल हो जाए. तो ये डिप्लोमेसी जो है बड़ा एक अच्छा, with the passage of time, as you grow in the profession, you learn things and it becomes an art. And I also like to say this कि अगर आपको डिप्लोमेसी पसंद नहीं है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट जॉइन द फॉरेन सर्विस. हाँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि हम बाहर जाएंगे तो हम फलाने शहर में होंगे, पेरिस में. नो, you can be in New York or you can be in Geneva, but you undergo very tough moments. Yes. It's a lot of work, lot of hard work, and you have to be on your toes all the time. It's actually वही जैसे होता है कि essential service है ना, 24 hours 24/7 है सर. 24/7 है. तो ये है, इस तरह चलता है काम. तो चला लिया हमने 40 साल, कर लिए, खुदा का शुक्र है, नौकरी कर ली और अच्छी हो गई. But I think of course I served in Korea, Malaysia. हर मुल्क जो है उसका अपना एक एथोस होते हैं, कल्चरल डायनामिक्स होती है, सोशियो इकोनॉमिक सारा होता है पिक्चर. तो हर मुल्क के बारे में आप कुछ ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन I really think I would not call it achievement, but my highest how would I say, यानी कि जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा वो मेरी चाइना की पोस्टिंग थी. चलो, आई एम ग्लैड वो 6.5 साल रही. चाइना 6.5 साल रही. But the way we worked and we could achieve some tangible outcomes, I think that was, and it's 5,000 years old civilization, a close friend, and this and that. हर लेवल के ऊपर उनके साथ इंटरेक्शन है. सिर्फ ये नहीं है कि बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपका इंटरेक्शन हो रहा है. आई एम ग्लैड कि सर आपने चाइना का जिक्र किया, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि अगर आपका प्रोफाइल देखा जाए तो माशाल्लाह से, आई मीन यू आर नोन टू बी वन ऑफ आवर एस डिप्लोमेट्स, लेकिन आपकी सर चाइना स्पेशलाइजेशन पे लोग ज्यादा बातें करते हैं. और मैंने देखा है कि आप टेन्योर लंबा हो गया ना, जो थिंक टैंक्स बुलाते हैं या आपको
इंटरव्यूज जो मैंने आपके सुने हैं, देखे हैं, उसमें ये ज़रूर चाइना पर्सपेक्टिव ज़रूर आ जाता है. तो आई मीन ऑफ कोर्स सर, एज यू ऑलरेडी alluded टू द फैक्ट कि उनके साथ हमारे बहुत ही ख़ास किस्म के ताल्लुकात रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम this relationship has evolved from strength to strength. And आज की दुनिया में सर, now that things are again boiling up a lot, where do you position the Pakistan-China relationship? First of all, China dominates the discourse on international relations for obvious reasons, because China is a power which has already risen, and they have established their bona fides, their credentials as a credible power. So the whole, discussion is understandable. When you talk of international politics, you talk of the superpowers, rivalry and competition, and rest of the countries, sort of adjusting their flanks in the context of that competition or whatever is going on. Now, you specifically asked me about China-Pakistan relations. Please give me about 2 minutes to explain. Sir, time is all yours, sir. Because I think it's important. Very important. First of all, I would start from saying that when I go to these, policy debates here and think tanks, etc., sometime on media, so there is a concern, of course, a misplaced concern about China's role in this region, China's role in Pakistan. Sometimes बड़े ridiculous से सवाल होते हैं कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बन गया चाइना, ये इसके. So I would begin by saying there's a lot of disinformation and propaganda against this relationship, against China. Mm-hmm. So because if you want to contextualize this relationship, you have to understand that there are forces at work which want to sort of, create strains in this relationship. Now, I think this is sufficient to say. Now, as far as Pakistan-China relations are concerned, and fortunately, in the time which I had in China, I was able to do my personal research and a very objective research. I try to be, as far as possible, objective research, rational analysis. So I realized in the last, now we are celebrating 75th anniversary of diplomatic relations. I think we just celebrated it recently. This is the year. In May 51, we recognized. So I realized that this trajectory of relationship has gone all along up. In any relationship, even between two friends, there will be some differences somewhere. That is logical. Look at what is happening between United States and the NATO partners. Mm-hmm. They are security allies, Yeah. but there are differences. So sometimes differences arise, but those differences or minor irritants do not impact the overarching, strategic picture. In China-Pakistan case, that is the situation. So this trajectory has all along gone upwards, believe me. In the beginning, Pakistan was the first Muslim country to recognize China. Exactly. And we were, in the Western camp, so Chinese were a bit apprehensive about our foreign policy orientation in the beginning. And I'm tracing this history because it's important to understand. So until 1955, there was no interaction at the highest level between two countries. But both countries, despite being in different camps, did not take any action which you can describe or interpret as inimical to others' interest. So that's gradually built that level of confidence, slow, but confidence in the beginning, because 1949 China emerged as new China, we were 47. It's a very nascent period, right?
उसके बाद ये हुआ कि 55 में जब वो बैंडम कॉन्फ्रेंस हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम आवर लीडर्स मेट in Indonesia. Indonesia. Premier Chou En-lai and Premier Prime Minister Muhammad Ali Bogra for the first time. That was the highest level interaction between two countries. And this question was raised as to why C2 and CENTO and this thing. Then Bogra Saab was able to explain the motivation that it is basically India specific. We need a security shield. We are a new country. We don't have much, and India is creating problem. And Chou En-lai was satisfied because this was stated in the press conference, media interaction after the meeting. Right. अब आप ये देखिए कि वो 55 में मीटिंग होती है, रिपोर्ट हो जाती है उस मीटिंग की टू चेयरमैन माओ जेडुंग, who is the founder, who is the supreme leader of China. He feels satisfied with Pakistan's explanation, and he says, okay, we should develop relations with Pakistan. Historically, through the Silk Route, we have had, such caravans have gone and Hunza and this. We refer करके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाए. So he immediately instructed the senior most political dignitary of China at that time. She was the vice president, the lady. She was the first one to come to Pakistan in 1956. जी. She was the spouse of Dr. Sun Yat-sen, जो इनके ओरिजिनल रेवोल्यूशनरी थे, उनकी बीवी थी वो. उनको भेजा making an overture, gesture, कि हम ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं. And 56 is very important year for Pakistan-China relations. She came, 55 and then 56. She came, and then Chinese government invited our prime minister. So we had a change. Prime Minister Suhrawardy was the first one to go there to China in 56, in October. And in December 56, Premier Chou En-lai came for the first time to Pakistan. And that is where the brick building started. The foundation was laid. And then from onwards, this journey started. शुरू में फिर 65 की वॉर आई, आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान की. उसमें चाइना ने हमें बड़ा सपोर्ट किया because we had taken some confidence building measures at all levels. Border treaty हमारी साइन हो गई 63 में. 64 में China was facing a air blockade, sanctions. PI became the first foreign airline to land in China. So उनके लोगों ने PI इस्तेमाल करनी शुरू कर दी दुनिया में जाने के लिए. वो बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हमारे दोनों. उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान तो ट्रस्टवर्दी है. ये ट्रस्ट की बात होती है. इस रिलेशनशिप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो that is mutual trust, mutual support, mutual understanding, and non-interference in internal affairs of each other. This is, I'm telling you from my own experience. तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा. शुरू में जरा सिक्योरिटी ओरिएंटेड रिलेशनशिप रही, मिलिट्री ओरिएंटेड. उसके बाद फिर ये, अब आपको पता है कि ये CPEC स्टार्टेड, तो इकोनॉमिक डायमेंशन जो है वो भी आ गई है. तो ऑफ कोर्स CPEC स्टार्टेड इन माय टाइम व्हेन आई वाज देयर इन 2013. मतलब आई हैव बीन part of the whole process in 2019. So it was a mega initiative. The Chinese came forward, and whatever is done has been achieved as before you. And जो था कि, I mean, it's really very pleasing to know as to how historically our relationship has developed between Pakistan and China. Or definitely we remain as ironclad brothers, always supporting each other on every front. Lekin sir, coming to the modern day world now with so much of I will come to the Apuchi, please. Tensions going around, or I mean, without really getting into anything specific or divulging anything, do you feel that Pakistan faces a difficult challenge, balancing act जो हम जिसको कहते हैं करना between so many 3-4 superpowers? I'll not name them, but they are very evident. This is a question often asked. This is exactly in everybody's mind. How are we doing this? Like. देखिए, मैं तो इसका जवाब ये दूंगा. एक तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना दूं. जी सर. हर कोई यहाँ बात करता है 1971 की, जब पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था डॉक्टर हेनरी किसिंजर का सीक्रेट विजिट टू चाइना, एंड व्हिच एक्चुअली broke the ice. और दुनिया की पॉलिटिक्स चेंज हो गई. ठीक है ना. बहुत सेमिनल रोल था पाकिस्तान का उस मीडिएशन में 1971. अच्छा, किसिंजर मीट्स Chou En-lai when he goes from Islamabad, and Chou En-lai tells him, this is 71, July 71, I think. He says, Mr. Kissinger,
don't forget the bridge which has brought closer to us, which has brought US and China closer to each other. मैं उसका पूरा जुमला तो भूल रहा हूँ, but these were the words. फिर आपने देखा कि वुड किसिंजर ने रजिस्टर किया, और दिसंबर 71 में जब ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस हुई तो देयर वाज अ टिल्ट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, निक्सन, किसिंजर। बल्कि वो तो जो उनकी किताब है निक्सन साहब की, उसमें तो उन्होंने लिखा है कि क्या क्या, मतलब वो उनको बिल्कुल इंदिरा गांधी पसंद नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि ये मैं किस्सा सुना। अच्छा, अब आपने बात की बैलेंसिंग। देखिए, आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, बट ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, it's a layman's जी question. जी, but नहीं नहीं, it's it's a like, layman's question. but- Even very educated people, even in the think tanks, this question is asked. Number one, when we were part of CETO and CENTO, we left in 70s these two alliances, Western alliances. Bhutto Sahib did it, I think. Yeah. 70s में तो हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ बहुत अच्छे हो गए थे। 65 वॉर का मैंने आपको जिक्र किया, 71 वॉर का जिक्र किया। तो ये जो इक्विलिब्रियम था, ये तो हमने रखा ना, मसला तो नहीं हुआ, हमेशा से रखा हमेशा से। तो उस वक्त तो पाकिस्तान जरा और कमजोर था, ईस्ट पाकिस्तान की जंग हो चुकी थी, हमारी इकोनॉमी जो थी वो काफी उस पर इम्पैक्ट आया हुआ था। डिस्पाइट दैट वी केप्ट दैट बैलेंस थ्रू astute diplomacy and intelligent statecraft. Now this question, now coming to the contemporary scene where this rivalry is intensifying in a way between the United States and China. Of course, all countries are uncomfortable, but they don't want to choose sides. For example, because अब चाइना का आप जिक्र कर लिया, चाइना के 130 से 135 तो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ASEAN is their largest trading partner. Absolutely. You think they are going to choose sides between United States and China? They will say, no, our economic interests are very supreme. We are not going to sacrifice this relationship for the United States. So, अच्छा, पाकिस्तान जो है, fortunately, हमें तो शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान is automatically a balancer because of its because of the geopolitical location. देखिए ना, when you talk of South Asia and West Asia, we are like connecting to and so Central many, Asia, you are a node. ठीक है, you are a bridge in between. So if you talk, because sometimes I see that State Department, for example, when they sort of focus on South Asia, so the focus सिर्फ South Asia पे होता है ना। तो साउथ एशियन इक्वेशन में मुझे आप ये बताइए ना कि क्या आप इंडिया तो अपनी जगह पर है, क्या पाकिस्तान को इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं? कोई भी नहीं निकाल सकता। दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर पाकिस्तान को इस इक्वेशन से डिसमिस नहीं कर सकती अपने स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में। इसीलिए अब आप देखिए कि ट्रम्प साहब ने ये रियलाइज किया कि पहले हम अगर मोदी साहब की बात ज्यादा सुनते रहे तो अब खुद भी सोचें, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक थोड़ा सा इवन हैंडेड जो है। ये बड़ा सर एक और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है हमारी डिस्कशन का कि हम ये जो लेटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में सर एक और आ रहा था ये सवाल इस वक्त, पब्लिक डिप्लोमेसी। ये पब्लिक डिप्लोमेसी का क्या कॉन्सेप्ट होता है सर? क्या इसकी क्या डेफिनेशन है? हाउ डू यू इक्वेट डिप्लोमेसी विद पब्लिक एंड पब्लिक विद डिप्लोमेसी? वेयर डज द नेक्सस स्टैंड? Foreign policy is an extension of your domestic policies. It reflects, because your foreign policy will be more effective if you have the right kind of, elements of national power, of which, of course, domestic environment is very important. So public diplomacy इस तरह तो और components पर आएंगे और elements आएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन मतलब ये नहीं हो सकता मेरे नज़र में कि हम ये कहें कि हम पाकिस्तान को एक बहुत ही चाहें, जाहिर बात हमारी एस्पिरेशन भी होती है और ख्वाहिश भी होती है कि हम ये चाहें कि पाकिस्तान को हम प्रोजेक्ट करें एज
as one of the most important countries in the region, tourism heaven और ये वो, लेकिन साथ साथ जो है शॉर्टकम्स जो हों वो हमारी डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट है उसमें नजर आए. तो इट हैज टू जेल, देयर हैज टू बी अ सिनर्जी, क्योंकि जहाँ आपको जब ये आपका यानी कि जिसको कहते हैं ना इस्तेहकाम होगा अंदरूनी तौर पर, और उसके मुख्तलिफ डेफिनेशन आप कर सकते हैं. मुआशी इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, सोशल इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है. लेकिन अगर आपकी अंदरूनी जो है वो एक जो मईशत है और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो पिक्चर पेश करता है इस्तेहकाम की, तो उससे फॉरेन पॉलिसी को बड़ी तक़वियत मिलती है. और फिर वो उसकी प्रोजेक्शन, उसकी मार्केटिंग थ्रू, फिर वो मीन्स में आप आ जाते हैं. मीन्स क्या होते हैं? आप इंटरनेशनल मीडिया से अपना राब्ता रखते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ट्विटर पे एक्टिव होते हैं, कल्चरल डायमेंशन जो है उसको आप हैंडल करते हैं, टूरिज्म पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है उसको आप ऑप्टिमली उसको कैसे यूटिलाइज, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं. तो मतलब ये कि हमें जो है ना, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि हमें एक रियलिस्टिक जो है ना व्यू लेना चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है मैं समझता हूँ. और जैसे कि आपने खुद कहा, जोग्राफिकली 250 मिलियन पॉपुलेशन, एंड yet we are facing serious issues, serious challenges on the economic front. So that is where our weakness lies. उसको एड्रेस करने की जरूरत है, और वो जाहिर बात है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सारी चीज़ें हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स. लेकिन वो जब इस्तेकाम होगा या उसमें मईशत आपकी बेहतर होगी, तो जाहिर बात है आपकी डिप्लोमेसी भी इफेक्टिव होगी. फिर अगर कल को आप हाइपोथेटिकली फर्ज कीजिए कि IMF के पास नहीं जाएंगे. इसमें सर एक छोटा सा चुपता सा सवाल मेरे जहन में भी हुआ कि डू यू थिंक कि पता नहीं, आई मीन लाइक मे बी मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के तौर पे सोच रहा हूँ इस वक्त कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान को ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट कमजोर रखा गया है बाय डिजाइन, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस? दे डू नॉट वांट, बिकॉज एज यू सेड कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए तो वन कैन प्रीटी वेल इमेजिन कि वेयर वुड वी स्टैंड. इस वक्त हमारी जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी सिंड्रोम है हमारा, IMF पे कह लें, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे कह लें, या मुल्कों पे कह लें. आई मीन एज अ पाकिस्तानी, एज अ ट्रू पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, आई फील कि आई विश वन डे मैं व्हाइल आई एम स्टिल अलाइव मैं ये दिन देखूं कि मेरा मुल्क आज़ाद हो हर लिहाज से, और हम अपना रोल जो कि सही मानों में हम अदा करना चाहिए टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, टुवर्ड्स ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, टुवर्ड्स ग्लोबल डेवलपमेंट. डू यू थिंक सर, आप माशाल्लाह आपका तो इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है 40 साल, डू यू थिंक कि ये कुछ सिनिस्टर डिजाइन है, ये हमारी गलतियां हैं, या हम ही बेवकूफ हैं, हम ही? हबीब साहब देखिए, बात ये है कि आप इस पहलू पे, मैं जरा अपने एंगल से बोलूंगा क्योंकि मैं फॉरेन ऑफिस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ. आप ये देखिए पाकिस्तान में कितनी क्राइसिस आई हैं मुख्तलिफ ओवर द पास्ट 70-80 ईयर्स, ठीक है. लेकिन आप ये देखें कि एक तो हमारी डिप्लोमेसी में कश्मीर का मसला जो है वो अलाइव रखा है. आज भी आप देखिए अखबार में आया कि सिक्योरिटी काउंसिल ने रिपोर्ट पेश की है, उसमें कश्मीर को उन्होंने ब्रैकेट किया कि इट्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है. डिस्पाइट द मैकेनेशंस ऑफ आवर ईस्टर्न नेबर के ये किसी तरीके से इसको निकाल दिया जाए वहां से, उनके एजेंडा से. देखिए ना, ये अच्छा. फिर आप मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में देखिए पाकिस्तान का नाम, आप वियना जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, जिनीवा जाएं, मुझसे ना पूछें आप, मैं तो शायद अपनी बात, लोग कहेंगे कि नहीं मैं तो अपनी बात कर रहा हूं. आप दूसरों से पूछें, 193 मुल्क हैं वहां पर, उनके डेलीगेट से पूछें जाके कि पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तानी वफ्द यहाँ कैसे करता है. एंड वी डू डैमेज कंट्रोल, वी हैंडल द क्राइसिस, एंड वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ जिसको मैं कहूँगा कि एक किस्म का, हम अगर कोई मुश्किल आ भी रही है, दुश्वारी हमें घर से, तो हम उसको ऐसे पेश करते हैं कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए. एक तो ये बात. अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए कौमें बनती हैं अपने ऊपर इन्हिसार करने से. मैं इसीलिए हाइपोथेटिकली आपको ये मिसाल दे रहा था कि फर्ज कीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम वी गेट रिड ऑफ दिस IMF. डोंट यू थिंक दैट वी विल हैव considerable autonomy in our decision making?
but do the others want it? नहीं, why do you give this why do you cede this territory to others? I'm a Pakistan 22 situation, sir. नहीं, निकलना भी मुश्किल है और नहीं वो है। हाँ, देखिए डेवलपिंग कंट्री निकल तो नहीं सकता, ये तो हाँ, मुख्तलिफ किताबें और लिखी गई strings, हैं इसके हाँ, ऊपर, हाँ, इतनी चीजें हैं लिखी सही। गई हैं, स्कॉलरशिप है पूरी कि किस तरह इसको डालते हैं। IMF वो जो है हिटमैन वाली क्या पूरी किताब है वो, इकोनॉमिक हिटमैन, वो देखें आप ये किस तरह ये इसको शिकल। बट द पॉइंट इज कि हमारे लोगों में कोई कमी तो नहीं है तालीम की और बिल्कुल नहीं है। टैलेंट की। हम लोग समझदार लोग हैं, पैट्रियाटिक लोग हैं। देखिए जब सीपैक शुरू हुआ था, ये मैं जरा इसको एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूँ, सीपैक का मतलब ये नहीं था कि चाइना जो आके आपको ग्रांट्स दे रहा है, मुफ्त में चीजें बना के दे रहा है, रोड्स बना के दे रहा है, हर चीज आपको मुफ्त में मिल जाएगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सीपैक उन्होंने कहा कि सीपैक इज अ व्हीकल फॉर पाकिस्तान बिकॉज यू हैव दिस डेफिसिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट डेफिसिट, HR डेफिसिट, डेफिसिट ऑफ टेक्नोलॉजी, so you need to build your capabilities. So we will help you to gradually move on to the road of self-reliance. ठीक है? आप मेरे ट्रेनर हैं और मैं ट्रेनी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे सिखाएंगे, लेकिन आपने मेरे साथ कोई लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया ना कि आप मुझे सारी उम्र सिखाते रहेंगे, उसके बाद आप कहेंगे भाई अच्छा ये 5 साल का कोर्स था, अब तुमने सीख लिया, अब गेट गोइंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। सही। तो अगर आपने अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी है, और ये मैं आपको बताऊं एक और, जो मैंने 75 ईयर्स की बात की थी रिलेशनशिप की, ये मैं आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली ये बात बता रहा हूं कि चाइना की जो भी आप कह लें सीपैक और मिलिट्री एड, ये सब चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज डेवलप हो। ये कोर है, वो तो बड़े सिंसियर फ्रेंड्स हैं। हाँ, देखिए बड़ी बात है। और फिर कभी वो ये नहीं कहते कि आप इसको ऐसे कर लें, हम नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, इस किसी की चीज नहीं, गुफ्तगू भी कभी नहीं होती। अब ये है कि आपने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है तो भाई आपको तो चीजें करनी पड़ेंगी। सेल्फ रिलायंस, दैट्स द कीवर्ड। आप देखिए ना, कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी, मुझे भी देनी पड़ेगी, आपको भी देनी पड़ेगी मुल्क की खातिर। इसमें ये नहीं हो सकता चाइना ने क्या क्या किया, ये नहीं कि चाइना हमसे गरीब था, कोरिया हमसे गरीब था जी। 78 में जब वो रिफॉर्म शुरू हुआ, मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस चाइना में, डेंग शॉपिंग ने शुरू किया, उसमें चाइना की पर कैपिटा इनकम हमसे कम थी, मिड 60s में, अर्ली 70s में हमारी ज्यादा थी। तो कोरिया के भी ऐसे था। तो मतलब है कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी हैव टू हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, where do we want Pakistan to be in the next 10 or 20 years? Number one. Number two, we will continue to face challenges, there will be pressures, but we should build our internal capacity, HR capacity. अब क्या है जो आपको ये क्रिटिसिज्म नजर आता है सीपैक प्रोजेक्ट्स जो कई दफा नहीं चले या हाफ हार्टेडली चल रहे हैं, उसमें यह है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है एब्जॉर्प्शन करने की आपके सिस्टम की, तो डेवलप दैट कैपेसिटी थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, थ्रू अदर इम्पार्टिंग एजुकेशन एटसेट्रा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर हमें तो हम तो वी कांट अफोर्ड टू बी लैक्स इफ वी डोंट मूव एंड डिसाइड फ्रॉम डे वन, फ्रॉम टुडे, देन नो, इन 10 years जो अभी गवर्नमेंट कहती है कि क्या हमारी $1 trillion की इकोनॉमी बनेगी हम 2030 में या 2035 में, 2030, तो व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच यू विल टेक प्रोग्रेसिवली एंड इंक्रीमेंटली टू इंश्योर दैट दैट हैपेंस, रादर देन कि आपका जो है वो प्रोजेक्ट भी जो है नेशनल प्रोजेक्ट वो रियलाइज ना हो। इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, कॉमन की है सारी। ये मतलब इतने छोटे ममालिक जो है हमसे आगे निकल रहे हैं, तो आई थिंक इट कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सीरियस रिफ्लेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, एज वेल एज जनरल अवाम। हमें अवामी तौर पे भी अपना रवैया जो है ना वो बेहतर करने की जरूरत है। आई थिंक सर ये बड़े आपने की वर्ड्स अभी बयान फरमाए, और इसमें आई थिंक इन अ वे आई मीन your words of wisdom, I would say, and your message to the people and everybody at large कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और अब सर थोड़ा सा टाइम की हमारे पास कमी है, दिल तो करता है कि ये बातें करते रहें, इतने सवालात हैं मेरे जहन में, और चूंकि मेरा अपना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी है इस फील्ड में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, लेकिन मेरा एक कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसको कि मैं बड़ी अहमियत देता हूं, और वो होता है कि आप जैसे जो हीरोज हैं हमारे पाकिस्तान के, खादे में हम हीरो नहीं सर, हीरोज मीन्स कि मैं अपना अपनी जहन में एक डिफाइन है कि पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉज ऑफ पाकिस्तान आर माय हीरोज, एंड एज आई सेड इन माय इंट्रो दैट इट कुड बी एनीबॉडी, इट
can be everybody and can be anybody and everybody. तो in a way we are all heroes of Pakistan because हम चाहते हैं, हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम इस मुल्क में हमारा मरना जीना है और हमने इसी मुल्क की तरक्की के साथ हमारी तरक्की जो जुड़ी हुई है. तो on a very positive note, sir, on this very positive note, I would want कि सर आप काइंडली शेयर करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस में हर तरह के लोग होते हैं, यंगस्टर्स भी हैं, एंड आई वुड लाइक टू डिसेमिनेट दिस प्रोग्राम टू यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड थ्रू आतिफ इनटू द मीडिया, और हम चाहते हैं कि लोग सुनेंगे. बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं टू बिकम अ डिप्लोमेट. उनके जहन में होता है कि सफ़ीर पता नहीं क्या होता है, एक तरह से एक रोल मॉडल होता है. क्या करते हैं वो लोग, क्या वो कोई अलग है, उनके क्या 4 कान हैं, 4 आंखें हैं. तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? मेरा ये एक पेड फॉरवर्ड का एक तरह सा तरीका है कि एक तरह की मसूद खालिद की क्या लेगेसी है. What would be your legacy and how do you want your legacy to go forward for the younger generation, to people who are aspiring? How do they build up their careers? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है, ये घर है हमारा. Absolutely. चाहे आपकी झोपड़ी हो, चाहे आपका बड़ा घर हो, लेकिन हर शख्स की जो मालिक होता है, जो रहता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं अपना घर साफ सुथरा रखूं. ठीक है. तो पाकिस्तान को पहली बात तो ये कि अपना घर समझे और इसके साथ कमिटमेंट जो है सिर्फ अल्फाज में नहीं, अमल से जाहिर करें. नंबर 1. नंबर 2, मैं ये कहना चाहूँ, और ये मेरा मैसेज जो है यंग लोगों के लिए बेसिकली, कायदे आजम की मिसाल आप ले लीजिए. डिसिप्लिन, कोई कौम डिसिप्लिन के बगैर आगे नहीं चल सकती. कोई कौम कमिटमेंट के बगैर आगे नहीं चल सकती. ये जो जनरेशन है जिसने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ रही है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि चैलेंजेस जो हैं, एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं दुनिया में. अभी आज से 20 साल पहले आप क्लाइमेट चेंज का जिक्र नहीं होता था, फूड सिक्योरिटी का जिक्र नहीं होता था, वाटर, अभी हमें इंडिया से कितनी प्रॉब्लम है वाटर की. देखिए ना, ये तो चैलेंजेस तो बढ़ेंगे ना. आया हमारी ये जो पौध है, जो सब पढ़ रही है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, वो इस चीज के लिए तैयार है. और ये डूम और ग्लूम नहीं होना चाहिए. इसमें मैं एक और बात भी कहूंगा. देखिए, आप पाकिस्तान को कितनी मुश्किल थी, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन गया ना, पाकिस्तान एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर है कि नहीं है, ठीक है ना. तो लोगों ने काम किया ना, आपने एक ऐसा डिटरेंस बना लिया कि जो दुश्मन जो है वो यानी कि आंख उठा के नहीं देख सकता आपके पास. आपने मेहनत से ही काम किया. तो अगर मेहनत से ये काम कर लिया तो बाकी काम भी कर लिया. अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी, अगर आप फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जरूर ज्वाइन करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन सर्विस, एज आई सेड अर्लियर, आई थिंक इट गिव्स यू lot of, I mean, it exposes you like anything to international culture, to international statecraft. अब देखें ना, मेरी मुलाकात एक दफा डॉक्टर हेनरी किसिंजर से हुई थी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे कसूरी साहब. फॉर मी पर्सनली इट वाज अ रेयर मोमेंट कि हम उनके घर में तकरीबन, मेरे ख्याल है 45-50 मिनट हमारी गुफ्तगू ऐसी इसी ड्राइंग रूम से. मेरे सीनियर कोलीग्स थे वहाँ पर. लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस किस्म का एक्सपोजर आपको कहाँ मिलेगा, किस सर्विस में मिलेगा. नंबर 1. नंबर 2, कि इसमें आप खिदमत मुल्क की बड़ी कर सकते हैं. आप ऐसी चीजें हैंडल करते हैं जो कि आपके जो दूसरे कोलीग्स हैं वो हैंडल नहीं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल भी आ जाती है, क्राइसिस आ जाती है, उसको आपने हैंडल करना होता है. एट टाइम यू फाइंड के अभी आपका सीनियर भी वहां नहीं है, क्या करना है आपने, यू हैव टू बी ऑन द टोज ऑल द टाइम. तो दूसरी बात यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए क्लैरिटी लाएं कि जी मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन करनी है. इसलिए नहीं कि मैंने पेरिस जाना है या मॉस्को जाना है, मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन करनी है एज ए national objective, because I will be playing some role in this bigger ecosystem. और उसमें यह है कि आप उसमें अपने कोर्स देखिए कि क्या कोर्स, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. उसके लिए आप पढ़ाई करें, जो यानी कि मीडिया को फॉलो करें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को फॉलो करें. अभी तक इंग्लिश जो है हमारी जो है ऑफिशियल ज़बान है, उसकी ज़रूरत होती है, और आपको जब दुनिया में इंटरेक्ट करना पड़ता है तो इंग्लिश में कोशिश करें, आपको महारत हो, और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं.
यानी कि जो नॉलेज बढ़ाने का है ना, वो तो आपके अपने ऊपर है, इंडिविजुअल का। आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, जिस तरह की किताब आप। I mean, it cannot be injected. हाँ, ये Knowledge तो इट cannot कैनॉट be बी इंजेक्टेड injected. ना। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप खुद बहुत बायोग्राफीज पढ़ेंगे, एक inclination होती है, एक aptitude होता है. एप्टीट्यूड होता है, What I felt was in हाँ। life कि आप तो अपनी उसमें फिर aptitude कामयाबी हो को जाती अगर है, जाते हैं तो आपको कामयाबी है। कुछ कुदरत भी रास्ते हाँ, बनाती है, कुछ हाँ। आपके रास्ते खुलते हैं उस तरफ. बिल्कुल, तो ये हम्म। बड़ा अच्छा है। मैं ये डाउनग्रेड नहीं कर रहा, दूसरी सर्विस से बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेशनल Of course. सिस्टम में। ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन रोल, बट सिंस आई बिलोंग टू फॉरेन सर्विस, आई एम सेइंग कि आई वुड एनकरेज। अब ये मैं देखता हूँ सीएसएस का रिजल्ट आता है तो पहले तो 2 सर्विसेज होती थी टॉप पे, सिविल सर्विस होती थी, फॉरेन सर्विस, और कभी फॉरेन सर्विस ऊपर भी हो जाती थी 60s में 70s में। तो अब जो है वो लोग जो हैं हमारे रखते हैं, छठे नंबर पे रखते हैं प्रेफरेंस अपने साथ। भाई ये पर्सपेक्टिव ही गलत है। हाँ, आप नहीं आना चाहते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर आप आना चाहते हैं, अच्छा रिलक्टेंटली अगर आप आएंगे तो आप विल बी मिसफिट। देखिए ना, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट है पुलिस में और आप आ गए फॉरेन सर्विस में, तो आप फिर आई मीन यू विल बी यू विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग एज मच टू द नेशनल कॉज। मैं नेशनल कॉज की बात कर, पुलिस अफसर भी नेशनल कॉज को सर्व करता है ना, ठीक है ना, आदमी अपनी अपनी पर्टिकुलर अपने फील्ड में नेशनल कॉज को सर्व, ओवरऑल सिस्टम में हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करता है ना। तो ये चीज है, और मेरा ख्याल है कि इसमें पढ़ाई लिखाई काफी करनी पड़ती है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन अगर आप इजाजत देते हैं जी। तो मैं अब नाउ दैट इन अ वेरी मैं समझता हूँ कि आपकी प्रोग्नोसिस है इसमें कि दुनिया एक बड़े टिमल्टस दौर से गुजर रही है, थर्ड वर्ल्ड की वॉर की बातें हो रही हैं, बल्कि किसी हद तक शुरुआत भी हैं, अल्लाह ना करे दैट कुड बी डेवास्टेटिंग फॉर द होल ह्यूमैनिटी। मैं वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू नो सर एज अ लास्ट क्वेश्चन कि अब आप ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है, इसमें आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? मैं पाकिस्तान को देखता हूँ कि अंदर 10 साल में पाकिस्तान तरक्की करेगा लेकिन उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। देखिए हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारा बड़ा पोटेंशियल, आप देखें ना लोग हमारे कैसे दे आउटशाइन आउटसाइड आई मीन, और एक्नॉलेज करते हैं। मेरे साथ जाती ये हुआ है कि एट द हाईएस्ट लेवल आई वाज टोल्ड व्हेन आई वाज एम्बेसडर कि यू पीपल आर वेरी bright. I mean, when you collaborate with foreign countries and the people, then you feel so good. Whether it's a vice chancellor of a foreign university or a minister in their cabinet, and it comes to you and tells you कि आपके लोग बड़े bright हैं, बड़े अच्छे हैं। तो मैंने कहा फिर इसलिए तो हम चाहते हैं कि कोलैबोरेशन ज्यादा हो। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत है और अब हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये देखिए, ये जो कनेक्टिविटी का मैंने बात नहीं की, आपको प्रेशर्स आपके ऊपर जो फॉरेन पॉलिसी एक्सटर्नल पॉलिसी में जो प्रेशर्स कम होंगे ना, वो आपके कम होंगे जब आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। वो स्पेस कैसे क्रिएट होगी? वो आप रीजनल कनेक्टिविटी में जाएंगे। अगर फिलहाल हमारा मशरकी हमसाया इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ आ जाइए। चीन यहाँ बैठा हुआ है, आपका नेबर है, रूस आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपकी पोर्ट्स देख रही हैं, ठीक है जी। अब इस क्राइसिस में देखिए ग्वादर पोर्ट में किस तरह कार्गो हैंडलिंग हो रही है। अच्छा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो आपके उनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं। तो इस सारे जब आप मैपिंग करते हैं तो पाकिस्तान तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो हमें कर रहा है। बल्कि हो सकता है कि इस वॉर के बाद हम जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बने, चाहे 5 कंट्रीज का हो मिडिल ईस्ट, उसमें भी पाकिस्तान एक रोल प्ले करेगा। तो लेकिन जो चीज़ है, एक तो ये कि आपको अपनी जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, it's going to be a new alliance of a NATO sort यहाँ not का। I don't know NATO sort or whatever, but I mean Pakistan is an important country. हम तो गल्फ कंट्री से सबसे कोलैबोरेट करते हैं ना, इवन इन सिक्योरिटी फील्ड और मिलिट्री फील्ड। तो हमारे लिए तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक नई चीज़ को हम सामने रखें, देखें कि कैसे हमने आगे लेके चलना है। तो इसमें पाकिस्तान के लिए बड़े मौके आएंगे, और इसमें सिर्फ कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक तो उसको यानी कि क्लैरिटी के साथ देखें कि क्या पिक्चर इमर्ज हो रही है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर्स आएंगे उनको कभी ना भी कह देना चाहिए, कुछ नहीं होगा आपको। और मुल्क कहते हैं, मुल्क कहते हैं तो कहने दे, नहीं मेरा मतलब पीपल हैव सेड नो टू। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, तो आप तो इतनी बड़ी पावर है, पावर है, मिलिट्री पावर है, 250 मिलियन का मुल्क है यार, कोई आसान तो नहीं है, ऐसे कोई छोटा मुल्क तो नहीं है। तो बात ये है कि एक तो, लेकिन आपको जो प्री रिक्विजिट्स हैं, अगर आप 10 साल में लेके जाना है, इकोनॉमिक गवर्नेंस व्हिच मींस इंप्रूविंग योर इकोनॉमी, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट। इन्वेस्टमेंट in
education, science and technology, HR capacity, industrialization through industrial parks, Productive economic capacity zones, अपनी बढ़ाएं। productive capacity बढ़ाएं। तो ये चीजें जो हैं ये आपके बड़े डेफिसिट्स हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि हमने कोई एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, बट आई डोंट नो वो उसका क्या हो रहा है। आप 10 साल का एक क्रैश प्रोग्राम बना लें, वर्कफोर्स को एजुकेट करें। हुकूमत बनाए कि 10 साल के अंदर ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि HR कैपेसिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। और बड़े मौके, चीन में 28,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके, वो जो पढ़ रहे हैं पोस्ट डॉक भी कर रहे हैं और PhDs भी कर रहे हैं और इतने ऐसी स्पेशलाइज फील्ड पे कर रहे हैं। जब वो आएंगे तो उनको एब्जॉर्ब करें ना, यहाँ अपनी उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करें ना। ये सारी चीजें हैं, बट यू हैव टू हैव क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी। सच्ची जो बात। Anything else you would want to say as your last comment on this for this podcast? देखिए यार, जितनी क्राइसिस आई हैं ना हबीब साहब पाकिस्तान के ऊपर, जंगें, 3 जंगें 4 जंगें तो हो चुकी हैं, कौम खड़ी रही है, कौम के अंदर रेजिलियंस है। तो इस रेजिलियंस को और मजबूत करें, अपने पैर जो है ज़मीन पे जमा के रखें और मेहनत करें, और खुदा ताला खुद ही आपको उसका सबर दे देगा, कि मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। So I think I'm quite optimistic as far as Pakistan's future is concerned. And so they should, mostly when you go to drawing room chatter is doom and gloom. But I think there are people, they're very intelligent people, and they're people, enlightened people, and who have knowledge of these things. They give you an alternative perspective. So we should also listen to the alternative perspective. Yes, we have challenges, we have problems, and we need to handle them. But I don't think there is any room for doom and gloom. So viewers, on this very positive note from Ambassador Masood Khalid, that we need to be optimistic, we need to be positive, and we have the capacity and we have the potential to go forward in these challenging and very trying times. But keeping in view the fact कि हमारे लोगों में बहुत resilience है, लोगों में बहुत एक उमंगे हैं, और we are a bright people acknowledged by all over the world. So inshallah there is no room for doom and gloom, but let's all strive and try for a better and prosperous Pakistan. So with these words, I will say goodbye to our very distinguished guest, Ambassador Masood Khalid. Sir, thank you very much for all your time. शुक्रिया। और सवालात तो बहुत रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और आपके साथ तो दिल कर रहा था कि ये महफिल चलती रहे, और इंशाल्लाह अगर कभी फिर आपको सहमत देंगे तो व्यूअर्स, इट्स खुदा हाफिज फ्रॉम H&A podcast, and thank you very much.